Very good morning, my dear students of class 8. How are you all, children? Hope you all are safe at your home. Okay, in the last class we have completed our chapter number 2, and today we are going to discuss all the question answers related to this topic, to this chapter number 2. Okay, so all of you take page number 29. Here you can see the exercises, isn't it? So first we are going to solve the exercises. Children, you can write the answers in your textbook itself, because for fill in the blanks there is space, tick the correct answer, इसको भी spaces है, matching करने के लिए भी spaces है. So you can write the 3 answers in your textbook itself. Okay, so open page number 29 and get ready with me. Okay, first question, microorganisms can be seen with the help of dash. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं? यस, इट इज़ माइक्रोस्कोप. इसका आंसर भी मैं शेयर किया है. यू हैव टू राइट माइक्रोस्कोप फॉर ए. Okay, microorganisms can be seen with the help of a microscope. Why, children? Because microorganisms are so small. They are tiny organisms, so they cannot be seen with our naked eyes. हमारे खुले आंखों से हमको देख नहीं सकते हैं, इसीलिए we are using the microscope. Okay, next question, B. Blue-green algae fix dash directly from air and enhance fertility of the soil. ब्लू-ग्रीन algae क्या है? वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो क्या फिक्स करते हैं एटमोसफियर से? यस, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ना. सो यू हैव टू राइट नाइट्रोजन देयर. Blue-green algae fix nitrogen directly from air and enhance fertility of the soil. ब्लू ग्रीन एल्गे और अदर एग्जाम्पल भी है. राइजोबियम बैक्टीरिया, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिक्स करते हैं सॉइल में. ऐसे रिजल्ट सॉइल का फर्टिलिटी, सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, है ना. बिकॉज नाउ द सॉइल इज rich in nitrogen, so nitrogen is very essential for the plants also. So moving to the C, alcohol is produced with the help of dash. Alcohol is produced with the help of, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प में हम अल्कोहल के लार्ज स्केल में हम प्रोड्यूस करते हैं. कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से? यीस्ट, है ना. यस, यू हैव टू राइट यीस्ट देयर. नेक्स्ट, D. Cholera is caused by dash. Children, you have to study that table very well, then only you can answer this. Okay, cholera एक bacterial disease है, so it is caused by bacteria. You have to write bacteria. Children, finish. First question answer microscope, second B का आंसर नाइट्रोजन, C का आंसर yeast, D का आंसर बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर. हियर इट इज़ रिटन एज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. दोनों सेम है. फर्स्ट ए, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश. वो सेम क्वेश्चन है. सी में कैसे है, वो ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन में आया है ना. यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इसमें 4 ऑप्शन है. इसमें एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का? नो, स्ट्रेप्टोमाइसिन. यस, इट इज़ अ एंटीबायोटिक. अल्कोहल, इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक. यीस्ट इज ऑल्सो नॉट एन एंटीबायोटिक. ओके, सो द आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. So you have to put a tick mark there. Next, see, carrier of malaria causing protozoan is it female Anopheles mosquito या cockroach, housefly, butterfly? You have to say the answer, children. Yes, malaria causing protozoa की कैरियर कौन है? फीमेल Anopheles mosquito. That mosquito carries the malaria causing protozoa.
Next, question number 4, D question. The most common carrier of communicable diseases is dash and housefly, dragonfly, spider. Commonly all carrier communicable diseases. communicable diseases क्या है? थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो पास करते हैं वो डिसीज़, इसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, है ना. सो ये कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है. सो इसका मेन कैरियर कौन है? एक एक इंसेक्ट इसको कैरी करते हैं. यस, दैट इज हाउस फ्लाई. नेक्स्ट, ई the bread or idli dough rises because of heat, grinding, growth of yeast cell, kneading. Yes, the answer is growth of yeast cells. yeast cell के वजह से, growth of yeast cell की वजह से वो इडली या बैटर या ब्रेड रेस करते हैं. क्यों? yeast अपनी संख्या बढ़ाई करते हैं ये सब्सटेंस में, बिकॉज ये सब्सटेंस में शुगर का कंटेंट है. शुगर यीस्ट को ग्रो करने के लिए अच्छा है. वो शुगर को खाते हैं और बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने की वजह से वो एयर बबल्स फॉर्म हो जाएंगी और इसके वजह से हमारे इडली का बैटर थोड़ा राइस हो जाएंगी, थोड़ा ऊपर आएंगी. सो द ब्रेड और इडली डो राइसेस बिकॉज ऑफ growth of yeast cells. Clear, children? Next, F, the process of conversion of sugar into alcohol is called dash. That is a direct definition है आपके टेक्स्ट बुक में है. Yes, it is fermentation. Tick that, fermentation. Okay, children, moving to the match the following. Match the organisms in column A with their action in column B. Here you can see the answers of option E and F. Okay. Next, moving to the match the following. Match the organisms in column A with their action in column B. Look, children, I am going to read the column A. Bacteria, rhizobium, lactobacillus, yeast, a protozoan, a virus. बैक्टीरिया क्या है आपको पता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. लैक्टोबैसिलस वो भी बैक्टीरिया है, वो कर्ड मिल्क से हम मिल्क को टर्न करने के लिए इनटू कर्ड, दैट प्रोसेस के लिए लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, यीस्ट कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहल, पिकल्स, वो सब केक्स, वो सब प्रोड्यूस करने के लिए यीस्ट यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट, एक प्रोटोजोआन, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ए वायरस, दैट ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, मूविंग टू द बी सेक्शन, फिक्सिंग नाइट्रोजन. नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ कर्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉसिंग मलेरिया, कॉसिंग कॉलरा, कॉसिंग एड्स, प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स. सो यू हैव टू मैच. स्टार्ट, चिल्ड्रन. बैक्टीरिया. Yes, bacteria causing cholera. So the first one का answer you have to match 1 to E, causing cholera. Next, rhizobium. Yes, the answer is fixing nitrogen. So 2, you have to mark 2 with A. Next, third one, lactobacillus, setting of curd. मिल्क को कन्वर्ट करते हैं इंटू कर्ड. मिल्क से हम दही बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के वजह से वो मिल्क कन्वर्ट करते हैं इनटू कर्ड. ओके. नेक्स्ट, यीस्ट. टेल चिल्ड्रन. बेकिंग ऑफ ब्रेड. बेकिंग ऑफ ब्रेड में मदद करते हैं. यीस्ट को बहुत सारा बेनिफिट्स है ना. नेक्स्ट, 5, ए प्रोटोजोआन causing malaria. Malaria is caused by protozoa. Next, last one, a virus. Virus causing AIDS. AIDS is a viral disease है.
ये वायरस के वजह से एड्स डिसीज स्प्रेड करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द 4th क्वेश्चन. चिल्ड्रन, मैंने पहले सम क्वेश्चन आंसर्स रिपीटेड है आपके नोट वीडियोस के साथ में सम क्वेश्चन आंसर्स भेज दिया है. सो सेम क्वेश्चंस रिपीट कर रहे तो आप नहीं लिखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई? इफ़ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी नेकेड आई से देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं? नहीं है तो कौन से मशीन, कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें? द आंसर फॉर दैट इज नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई. नेक्स्ट वी हैव टू वी आर गोइंग टू आंसर द सेकेंड पार्ट. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के मदद से हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. नेक्स्ट, don't worry children, if the screen is not clear, I will be sending all the question answers along with your video, so you can copy that. Okay, just listen to me. Next, question number 5. What are the major group of microorganisms? Microorganisms का major group क्या क्या है बच्चों? 4 major groups है ना? There are 4 major groups of microorganism. First one bacteria, second one fungi, third one algae, last one protozoa. Next, question number 6. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. इजी क्वेश्चन है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम आप बोलना है. वो कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल आर, फर्स्ट वन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लाइक राइसोबियम बैक्टीरिया, एसेक्टोबैक्टर. ये दोनों बैक्टीरिया से वो दोनों नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट एक ब्लू ग्रीन एल्गे है. एल्गे ग्रुप में कौन है? एनाबेना एंड नोस्टॉक. एल्गे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक मेजर ग्रुप है ना एल्गे. आपने देखिए ना थर्ड वन क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी. सो ब्लू ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है एनाबेना एंड नोस्टॉक. These bacteria and blue green algae can fix atmospheric nitrogen in the soil. Okay. Next, question number 7. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. जो हमारे डेली लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे मदद करते हैं. फर्स्ट, द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स आर एज फॉलोज. Here 10 points are given. First one, lactobacillus bacteria convert milk into curd. lactobacillus bacteria एक बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? मिल्क को कन्वर्ट करते हैं into what? into curd. With the help of this bacteria हमें वो मिल्क से हमको कर्ड बन सकते हैं. बिकॉज बैक्टीरियाज कॉलोनीज में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं. सो इफ़ वी आर एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड टू दैट मिल्क, वार्म मिल्क में हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड डालिए तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे और वो पूरी मिल्क को कर्ड ही बनेगी. ओके. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर फंगाई दैट इज यीस्ट यूज्ड टू प्रिपेयर चीज़, पनीर, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा. यीस्ट क्या है? यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो फंगाई ग्रुप में है. यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर फंगाई है. एक सेल है, एक ही सेल होते हैं. सो यीस्ट को बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूसेस है, लाइक चीज़ का प्रिपरेशन में, पनीर का, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये सब के प्रिपरेशन में यीस्ट यूज़फुल है. नेक्स्ट, थर्ड वन, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल. और अल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट यूज़फुल है. यीस्ट ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इडली, डोसा, खमन एक्सेट्रा. है ना, इडली, डोसा, खमन वो सब बनाने में हम यीस्ट डालते हैं फॉर राइसिंग, वो राइसिंग होने के लिए, और उसके वजह से वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे, फ्लफ़ी भी हो जाएंगे ना. नेक्स्ट, ए फंगाई नॉन एज मशरूम यूज्ड एज फूड. मशरूम क्या है? एक फंगाई है, वो मशरूम भी हम यूज़ करते हैं खाने के लिए. सो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना यूजफुल है ना. नेक्स्ट पेंसिलिन. पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई. पेंसिलिन, जो पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर्ड किया है विद द हेल्प ऑफ ए फंगाई नॉन एज पेंसिलियम, है ना. नेक्स्ट, राइसोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी. Number 7. Rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen in the soil and increase the soil fertility. You know that rhizobium bacteria क्या करते हैं, atmospheric nitrogen को fix करते हैं, and as a result of that the soil fertility increase हो जाएंगे, soil का quality भी बढ़ जाएगी, है ना. Because now the soil is rich in नाइट्रोजन. वो अभी नाइट्रोजन का कंटेंट वो सॉइल में ज़्यादा है, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट 9. सर्टन बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन. सम बैक्टीरिया मदद करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन का उत्पादन में हम कोई बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट 9. Certain bacteria and fungi play a role as decomposers and decompose organic waste into harmless and usable simple substances. You know that certain bacteria and fungi दोनों decomposers के जैसा एक्ट करते हैं. वो क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल्स, डेड प्लांट्स या एनिमल्स का वेस्ट और कोई भी एक्सक्रीटा, वो सारी हार्मफुल, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या पोल्यूटेड सब्सटेंस को क्या करते हैं, जो ट्रांसफ़र करते हैं इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस. These waste materials are converted into a useful substance by the help of some microorganisms like bacteria and fungi. And it also increases the fertility of the soil. Next, last one, certain microbes are used in sewage treatment. Some microbes हमें मदद करते हैं to purify the water. Water को purify करने में ये सम माइक्रोब्स मदद करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट्स में. इसका एग्जांपल है एरोबिक बैक्टीरियाज, एनारोबिक बैक्टीरियाज और बैक्टीरियाज ये सीवेज ट्रीटमेंट में मदद करते हैं. ओके, वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करते हैं ये सम बैक्टीरियाज लाइक एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज. Okay children, now we are going to the question number 8. Write a short paragraph on the harms caused by the microorganisms. अभी क्वेश्चन नंबर 7 में यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया था. सो नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. हमको हार्मफुल नुकसान देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत अलग अलग वेज में वो हमें नुकसान देते हैं हमको. फर्स्ट वन, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा. सो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको बीमारी देते हैं. ह्यूमन बींग्स को भी, ह्यूमन बींग्स के अलावा प्लांट्स या एनिमल्स को भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी देते हैं. और क्या क्या है ह्यूमन डिसीज़ का एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा, ये सब ह्यूमन डिसीजेस है that are caused by these microorganisms. Next, point number 2, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by Bacillus anthracis bacteria. एक dangerous disease है, एक severe disease है एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम कैटल्स लाइक काउ, बफेलोस को भी अफेक्ट करते हैं. ये एंथ्रैक्स का मेन कॉज कौन है? एक बैक्टीरिया है, इसका नाम बैक्टीरिया का नाम है Bacillus anthracis. Next, third one, several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. Microorganisms not only human beings, animals ko, but also they are harmful for the plants also, like wheat, गेहूँ या राइस का
पोटैटो का, शुगर केन और ऑरेंज, ये सारी प्लांट्स में वो इफ़ेक्ट करते हैं. द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. इसके रिजल्ट क्या हो जाएंगी, ये सारे प्रोडक्ट्स का यील्ड प्रोडक्शन कम हो जाएंगी. अच्छे से वो ग्रो नहीं करते, फ्रूट्स भी नहीं देते अच्छे से. Okay, next, fourth one, food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism. Yes children, this is a very severe problem. Food poisoning हमको आ रही है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. लाइक फंगस, जो ब्रेड में फंगस अटैक करते हैं, और फंगस इवन हम अटैक द क्लोथ्स, लेदर मटेरियल्स, ये सब डैमेज करते हैं ना. फूड पॉइजनिंग लीड्स टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. समटाइम्स ये सीरियस बीमारियों को भी कारण हो जाएंगी, या मृत्यु के कारण भी हो जाएंगी, है ना. सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या है, और एंटीबायोटिक्स खाने के टाइम में हम क्या क्या चीज़ों ध्यान में रखना पड़ता है. ओके चिल्ड्रन, दीज आर क्वेश्चंस दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, बिकॉज फिर से आई एम रिपीटिंग इट अगेन because this is a revision for you. Okay, antibiotics are the medicines that either kill or stop the growth of disease causing microorganisms. एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, वो क्या करते हैं, ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है ना, इसका ग्रोथ को, ये माइक्रोब्स को किल करते हैं या इसके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. एंटीबायोटिक्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगाई. एग्जाम्पल क्या क्या है? पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा. ये कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स का नाम है. आप भी सुनाए होंगे इसका नाम, isn't it? Next, following precautions must be taken while taking antibiotics. So now we are moving to the second part of that question. What precautions must be taken while taking antibiotics? Point number 1, antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. एक qualified डॉक्टर के एडवाइस के बिना हम एंटीबायोटिक्स नहीं खाना है. विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर हम ये एंटीबायोटिक्स खाना है. ओके, वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर. तो ये एंटीबायोटिक्स को नॉर्मली एक कोर्स है, एक 1 वीक 2 वीक ऐसा एक टाइम ड्यूरेशन है, वो इतने दिन हम कंटिन्यू करना है, बीच में हम बंद नहीं करना है. बंद करने तो वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में भी ये इसका रिजल्ट हमारे बॉडी में नहीं आ जाएंगे. नेक्स्ट टाइम में हमको कोई भी डिसीज़ आए तो वो एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में रिजल्ट नहीं देते हैं. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. अननेसेसरीली, वो बिना कारण की वजह से हम ये एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी में अच्छे एंटीबॉडीज है उसको भी किल करते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज है उसको भी किल करेंगे, वो उसके ग्रोथ में भी वो इफेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इफ वन टेक्स एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव. ऑलरेडी दैट इज ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना खाया है और तो वो इसका ड्रगेज है ना, वो कॉम्पोजिशन है, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में नहीं आ जाएंगी. नेक्स्ट टाइम हमको बीमारी है तो वो टाइम में भी वो रिजल्ट नहीं देते. सो वी शुड ऑलवेज टेक द एंटीबायोटिक्स विद द हेल्प ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. ओके चिल्ड्रन. So children, this is the end of our session. Now we have completed the textual exercise now. So there are a lot of additional question answers. Look children, these are the additional question answers for you. So I will be explaining these additional question answers in the next session. That I will also send today itself. Okay, so you have to watch the 2 videos. Okay. Bye bye children.